Hello, ma'am. Yes. Only 20 student. Okay, let's wait for 1 minute more. Okay. So today I am going to start your module 3. Okay. Hello. Please reply me better. You are listening to me or not. Yes, ma'am. Okay. So if you have any problem in any topic from module 1 and 2, okay, then discuss with me on Friday. Okay. Hello. For coming Friday, because you have your exam from Monday na, Monday onward. So if you have any query मैम from सैटरडे module, को है, सैटरडे को दिन में। Saturday से start है. मैम सैटरडे को Yes, ma'am. दिन में 1 से 2 ये सी का ही है। फ्राइडे नहीं, को स्टार्ट डाउट कब तो से मैम है? सैटरडे से स्टार्ट है एग्जाम आपका? मैम सैटरडे को 1 से 2 सी का पेपर है, मॉड्यूल 1 और 2 का। ओके ओके, तो आई थॉट कि आपका मंडे से स्टार्ट है. हेलो, एक्चुअली आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट ईयर ना, सो मे बी आई एम लिटिल बी कंफ्यूज. ओके, सो मॉड्यूल 1 और सेकेंड में कोई डाउट है? अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी. और दूसरा ये भी है कि अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो यू कैन टेक्स्ट टू मी, है ना, वो व्हाट्सअप नंबर है मेरा आपके क्लास में. तो आप उनसे भी लेके आप मुझे जस्ट बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कोई फाइल होगी तो मैं एमएस टीम पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है. हेलो. Okay, ma'am. अच्छा, तो दिस इज कंफर्म ना कि आपका जो भी पेपर आएगा दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 1 एंड सेकेंड. हेलो हेलो. मैम सिलेबस में तो यही बताया। मैम आपने यही बताया है। Yes, ma'am. वंशिका, मैं आपके सीआर से पूछ रही हूँ, आपके सीआर ने अगर पीएल से बात की हो, अगर आपको कोई अपडेट पता चला हो, क्योंकि मुझे तो यही था कि आपका पेपर मंडे से है ना. आई टोल्ड यू ना कि मैं फर्स्ट ईयर नहीं लेती हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, है ना. और न मैं ही उस टीम में हूँ, फर्स्ट ईयर की जो फैकल्टी हैं, न तो मैं उस टीम में हूँ अभी तक. आई एम सेइंग व्हाट योर क्लास टीचर सेड टू मी, योर निधि मैम, है ना, निधि मैम ने मुझे बोला था कि फर्स्ट और सेकेंड ही यूनिट है अभी तक. मतलब जो मेरी उनसे बात हुई थी यस्टरडे, तो यस्टरडे ही सी टोल्ड मी कि अभी तक फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल ही हो है. तो अगर कोई चेंजेस है तो मैं वो आपसे पूछ रही हूँ, वंशिका. हेलो वंशिका. मैम वी डोंट नो। ओके. ऑन योर सीआर कौन है आपके सीआर? मैं नाम भूल गई. हु इज दिस योर सीआर? हेलो. मैम कुशाग्र। सात्विक एंड Kushagra. कुशाग्र। कुशाग्र एंड देर आर टू सीआर ना. सात्विक सात्विक सात्विक. ओके, हाँ. सात्विक एंड सात्विक, आर यू सात्विक देयर? एंड कुशाग्र। मैम सात्विक एंड कुशाग्र। ओके, सो सात्विक एंड कुशाग्र, आर यू देयर? सात्विक एंड कुशाग्र. चलो एनीवे. हम नहीं आते वो क्लास। ओके पार्थ, चलो लेट स्टार्ट योर थर्ड मॉड्यूल. ओके, and I am repeating again, if you have any query from module 1 and second, so you can ask me. ठीक है. So now starting from third module. Okay, can you see my PPT? Hello यस मैम। Parth. Okay, 1 second, I am doing in slide mode. So what is the basic in the C programming? Okay, all of you know already there is an input and there is an output, and there is some another basic function, or you can say basic. This is very basic about your C language. Okay, hello. Or there is also a C processor. What do C processor? C processor directive are used to modify C code.
Okay, means whatever we are doing in the code for the programming in C, there are the C processor responsible for the processor directive are used to modify in the C code. Okay, like define constant, define what is going wrong with you people? Why you are always muted me? Is there any problem with me? Hello, I am asking from all of you. Hello, is there any problem in my voice? Hello, why you people always muted me? Hello, please give me reply. Yes, ma'am. Ma'am, you are unmute. I am unmuted myself, but in between someone muted me. And in every time, every class, this always happen. Okay, let's. You can you see my slide? There is a table of content. Yes, ma'am, Can you we see can. this slide? Okay. So before this, I would like to discuss about some basics about the C programming. Okay. There is a one C processor. Oh, 1 second. One minute. I am choosing my pencil. Okay. That's why I am. Okay. Okay. Now fine. Okay. So there is a first is the C your okay. First is there is the C preprocessor. Okay. So what is doing the C processor? Can you see what I am writing? Hello, can you see what I am writing? Yes, ma'am. So first is the define constants. Okay, and define micro. Also include files. Okay, and other parameter also on the time of the compilation. Okay, time of compilation. So for example, preprocessor constant, like define a symbolic constant. Okay, like if I defined pi. Okay, so what is the value of pi? 3.141526. Okay, and for the better version also we can define this, like define pi in bracket 3.141526. Okay, we also can define this type, and also we use symbolic constant. Okay, what is the symbolic constant? Like if we want to write the circle length, so we can write here circle length. Okay, 2 pi radius. Okay, because this is the formula of your circle length. Okay, so these are the some your C processor directive which are used to modify the code. Okay, and there is also Hello. micro call. Hello, yes.
Ma'am, can you please erase everything and write it again? We cannot understand this. What you are writing? यस मैम समझ में नहीं आ रहा मैम. ओके ठीक है, मैंने इरेज कर दिया है अभी. ठीक है. Ma'am, यस बेटे. ma'am, someone is removing me continuously. Kindly mark me present. ओके वंशिका. ओके. Okay, so I am writing again. There is a C. Now it's clear. Now it's clear. Better, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, तो मैं बोली थी Better. C में जो सबसे बेसिक होता है, there is a C preprocessor. Okay. So what doing the C processor? Processor directive are used to modify the C code. Okay, modify the C code. ठीक है. ये हमारा क्या करता है, सी प्रोसेसर के थ्रू जो भी हम कोड लिखेंगे उसको मॉडिफाई करेगा. आई एम टेलिंग दिस बिकॉज यू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द सी, है ना. तो ये क्या कर सकता है, डिफाइन द कांस्टेंट, जो भी हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं उसको करता है. देन डिफाइन द माइक्रोज. ओके. ऑल्सो इंक्लूड द फाइल. नाउ आई थिंक इट्स बेटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, है ना. अभी आपको समझ में आ रहा है. यस मैम. Yes, है ना. ma'am. और इसके अलावा क्या करता है, ऑन द टाइम ऑफ योर कंपाइलेंट, है ना, उस समय भी ये वर्क करता है आपका सी प्रोसेसर. द सी प्रोसेसर इज योर डायरेक्टिव. ओके. सो व्हाट आर द माइक्रोज. माइक्रो आर सिमिलर टू द फंक्शन कॉल. जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो माइक्रोज वहां पे होता है लाइक अ सिंबॉलिक पैरामीटर. ओके. And also this include the preprocessor and header file and also include any file. Okay, ये क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा प्री प्रोसेसर है also include our header file, जो भी हमारे header file होते हैं, and साथ में any file, any other file. Okay. And what are the header file? Header file are usually defined function prototypes, यूजर डिफाइंड टाइप एंड ग्लोबल वेरिएबल. आई थिंक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है इसकी हेडर फाइल की, तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डूइंग द हेडर फाइल. Ma'am, somebody has muted you, I think. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो. Ma'am, you're audible now. Now my PC is going on hang. Hello. Hello. Yes, ma'am, you are audible. If you don't want to teach, then clear to me ना कि आप नहीं चाहते हो पढ़ना. Hello. मैम आप प्रेजेंटर बना दो मैम.
मतलब ले लो वो परमिशन तो मैम फिर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ बेटे, बट उसमें तो फिर आपका 5-10 मिनट तो चलो मैं करती हूँ, मैं कैन अटेंड ही करती हूँ, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग ना बेटे, दिस इज योर क्लास, आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। अभी आपको करना है, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, मुझे मेरा अभी एग्जाम नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पे आपके लिए आई हूँ ना, मैं अपनी जितनी भी क्लासेस है उसमें से टाइम निकाल के आपको टाइम दे रही हूँ, और आप लोग फिर, दिस इज योर क्लास ना, आई एम हियर फॉर ओनली यू एंड यू पीपल ऑलवेज, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो ना कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, या आप जो बोल रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है, या हमें नहीं सुनना है, और जिसको नहीं सुनना है वो प्लीज चला जाए, है ना, मुझे बता दे कि मैम आई वांट टू ओनली अटेंडेंस, और फिर वो अपना म्यूट करके घूमे घर में, मैं थोड़ी ना देख रही हूँ आप लोग घर में क्या कर रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी तो आप लोग का फायदा ही है ना, अभी तो सबके अभी ऑन भी नहीं है वीडियो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई सो रहा है या कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें भी आप लोग को इतनी तकलीफ हो रही है, बार बार मुझे म्यूट कर रहे हो। हेलो, ओके, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका वीडियो अभी ऑन होगा मैं उसी को अटेंडेंस दूंगी, नहीं तो अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू अटेंडेंस, एंड दिस इज द माई प्रॉमिस फॉर टुडे। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, ऑल स्टूडेंट। Ma'am, my camera not working. Who is saying your camera not working? Who is this? Jashandeep Singh. Your camera is not working. No, ma'am. You are using from mobile or laptop? From laptop. So you can switch on mobile also. Download your app on mobile and you can attend your class from your mobile also, because there is not any means any you had to present, है ना? Jasandeep? I will download it today. Okay. And what about other students? Ma'am, I don't have webcam. Ma'am, me too. Who is this? I'm Who is Sahil. this? Ma'am, I think I got crashed or I was kicked from the meeting. Please mark me. Prajwal? Yes, ma'am. Please turn on your camera, bete. Switch on camera. Okay? Ma'am, actually, my camera is not working correctly. Let me see if I can let it work. I need all student camera on. Only Vidhi is switch on their camera. Switch on your camera. Camera? Hello. केवल विधि ने अभी तक स्विच ऑन किया है. What about the other students? There is a 30 attendees, okay, or only one has to switch on their camera. What about the other? Vansika? Okay, Prajwal. Vansika? Ma'am, I'm turning on. Wait, it's lagging. I've switched on. Ma'am, I'm also turning on. Visible. Sudiksha Sharma. One second. Excuse me, ma'am, I have switched on. Okay. Ariman. Okay, Yuvraj. So please tell me what is the problem. If you people have any problem, please discuss to me, because this is not the right way. In every class you people muted me, है ना?
तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको परेशानी है, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, हमें ये करना है ना। या तो आपके पढ़ाई का हमें स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है, या आप जो बोल रहे हो हमें वो नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, या तो आप लोग सब पढ़ के आए हो ऑलरेडी, है ना। हेलो, प्लीज रिप्लाई मी एनीथिंग, you can discuss to me anything, hello, related to your course, your problem, your understanding. Please reply to me बेटे। बाकी सब चले गए, अभी केवल एक ही है यहाँ पे। बाकी सबने स्विच ऑफ कर लिया कैमरा वापस। वंशिका जैन, वेयर आर यू बेटे? वंशिका जैन, कहाँ गए आप? Yes, ma'am. यस बेटे, टर्न ऑन योर कैमरा। विधि भी चली गई। ओके, मैम तो फिर एक्चुअली डिस्कस टू मी ना माय कि आपको नेट क्या इज प्रॉब्लम है, बिकॉज जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा। और अगर बाय चांस आपकी निधि मैम अगर ज्यादा बीमार हो गई, लंबी बीमार हो गई, तो फिर मुझे क्लास लेनी है, फिर ये सेमेस्टर कैसे निकालोगे मेरे साथ तुम लोग, है ना। ये तो प्रॉब्लम हो मैम वी हैव जाएगी। नो प्रॉब्लम। मैम हम में से कोई आपको म्यूट नहीं करता है, रादर मैम हमें कोई किक करता रहता है क्लास से। Yes, ma'am. मेरे नहीं, को खुद कोई अभी तो तक बैठे 15 हैं जो टाइम्स मुझे निकाल म्यूट यस चुका कर है। रहा है, मैम मुझे भी म्यूट कर रहा है। मैं देयर इज समवन हु इज आल्सो म्यूटेड मी एंड रिमूविंग यू पीपल आल्सो। हम कोई वो तो है एक इस बंदा क्लास कर में। रहा है और उसकी वजह से सभी वो कर रहे हैं, सफर कर रहे मैम हैं। फिर वो मैम एक बंदा कैसे मैम, जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो सबको अटेंडी बना दो, प्रमोटेड। हाँ मैम। पर प्रॉब्लम ये है ना कि सारे स्टूडेंट एक साथ आते नहीं है, वो 2-2 मिनट में करके 5-5 मिनट में करके आते रहते हैं। या तो फिर मैं ये कर दूं कि मैं ऐसा ही ना दूं, तो आफ्टर 2 मिनट, है ना, कि आप बिल्कुल मैम टाइम पे आ जाओ। मैं तो आप लोग के भले के लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर पे हो, 5 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए तो मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं। मैं तो 50 मिनट के बाद भी मैम आपकी आप अटेंडेंस मार्क 20 पे करती बना हूँ। दिया करो, 20 पे बना दिया करो, 20-25 पे। ठीक है, अदरवाइज जो मैं पढ़ा सेटिंग्स रही हूँ होते हैं मैम, समझ में ज्वाइन आ रहा है। करते ही एंड ही होता है। मैम सीआर को बोल दो मैम, वो सबको पहले ही अटेंडी बना देगा। बट आपके सीआर तो यस क्लास में मैम। आते ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये है, आपके यार है दोस्त कहाँ? दोनों यस ही मैम। क्लास में नहीं आते ना, सात्विक आता है और नहीं दूसरा आपका ठीक है। मैम सात्विक है तो मैम। वो रिप्लाई नहीं सात्विक कर रहा आयु भाई, है। रिप्लाई कहाँ करता है वो। मुझे दिख नहीं रहा है। साहिल, सज्जा, संस्कृत, शांतनु, शेखर, सात्विक नहीं है मैं यहाँ साथ पे। मैं वो मैम सज्जा मैम सात्विक है। सज्जा ही सात्विक है। सज्जा ओके ओके सात्विक चौधरी मैम पूरा उसका। ओके। सो यू क्यों आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मैम सज्जा, सात्विक, केवल आप अटेंडेंस के टाइम पे रिप्लाई करते हो। मैम अब सीआर है एक्चुअली तो आपको रिस्पांसिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी ना क्लास की। ma'am, I tried checking whether who is kicking them out, but there is no way of checking who is doing that. ठीक है, तो अब आपकी और दूसरा कौन है आपका? वो तो आता ही नहीं क्लास में। कुशाग्र। कुशाग्र, वो आता ही नहीं है क्लास में। तो चलो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप सबको आते ही अटेंडी बनाओगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं प्रेजेंट कर रही होती हूँ, वेन एवर आई प्रेजेंट माई पीपीटी, तो मैं ये नहीं देख पाती हूँ कि कौन कब ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उस समय स्क्रीन पे केवल पीपीटी चल रही होती है, बाकी मेरी पीपीटी नहीं दिखती है मुझे। सॉरी, बाकी स्क्रीन मेरी मिनिमाइज हो जाती है। ओके, ठीक है सात्विक। Yes ma'am. Yes. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हो। वैसे भी आधा टाइम तो निकल ही गया है कल आप लोग को समझाने में, बताने में, है ना, कि मैम करना क्या है। कैन यू टाइप इन अ टेक्स्ट बॉक्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग? टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखने को, टाइप करने को बोल रहे हो आप? यस मैम, हैंड राइटिंग थोड़ी मुश्किल है समझने में। ओके, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिखूं, बिकॉज अगर मैं टाइप करूंगी तो ये डबल टाइम लेगा, है ना। अभी क्या जो मैं लिखती हूँ वो डिजिटल पेन से लिखती हूँ तो फटाफट लिखा जाता है, बट अगर मैं वही टाइप करूंगी तो इट विल टेक डबल टाइम व्हाट एवर आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा
और मतलब थोड़े बड़े साइज में लिखूं और थोड़ा सा दूर दूर लिखूं कि आपको समझ में आए, ठीक है? ओके मैम। ओके दिव्यम, ओके। वंशिका, आर यू हैव एनी प्रॉब्लम? वंशिका? No, ma'am. ओके। नेहा, विधि? Yes, ma'am. ओके, आप लोग को नया कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं मैम। ऑल स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। आपकी आवाज आ रही है जो भी आप आपस में बात कर रहे हो। ओके, सो टुडे इज द 30 स्टूडेंट, सो ओके। पीपीटी विजिबल है? पीपीटी इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. बेटा फिर आप अपने एंड पे चेक करिए, क्योंकि अगर और स्टूडेंट को विजिबल है तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन योर सॉफ्टवेयर, है ना? योर मोबाइल सेट और योर लैपटॉप, प्लीज चेक या रिफ्रेश कर लीजिए उसको, ठीक है? सो मैं बता रही थी अबाउट द योर इंक्लूड फाइल, हेडर फाइल, है ना? तो आई थॉट आप लोग को ये सब पता होगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है थ्रू द हेडर फाइल एंड इंक्लूडिंग फाइल, है ना? हेलो। Now there is a some character set, है ना? What are the character set? There is some letters and digit and also 29 special character, okay? And whatever our space, this is all also including in a character set, like blank space, white space, origin, tab, है ना? New line, these are all or also including your character set, okay? And there is some is known as a C token. So what is the C token? Also token are 6 types, means your keyword, your identifier, variable and constant. These are the C tokens, and your operators also, okay? So keyword is a word whose meaning has already been explained to the C compiler, मतलब जो भी C compiler already declare करता है या explain करता है, these all are the keywords, okay? And keywords cannot be used as a variable, as if you do so compiler, so वहाँ पे अगर हमने variable का भी नाम वही दिया जो हमारे keyword का नाम है, तो compiler के टाइम पे जो प्रोग्राम हमारा रन होगा उसमें एरर दिखाएगा, है ना? तो इस वजह से जो हमारा कीवर्ड है उसको हम हमारा जो कीवर्ड है उसका नाम हम किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं जब भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है? एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ रिजर्व्ड वर्ड, सो इसको हम यूज नहीं करते, इसको हम दैट्स व्हाई दिस ऑल द कीवर्ड नोन एज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ओके? एंड दीज आर द 32 keywords in C. Second is the identifiers. कौन सी स्लाइड पे है? स्लाइड नहीं दिख रही है मैम? कौन सी स्लाइड पे आप मैम? मैं भी फर्स्ट टाइम रही हूँ, अभी मैं रिवाइज ही आपको करा रही हूँ। हेलो, ओके मैम। हाँ, क्योंकि आपका जो स्लाइड है वो स्टार्ट है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट से, ओके? बट मैं आपको रिवाइज भी करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकेंड मॉड्यूल आपका आने वाला है, तो ये आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए व्हाट आर द कीवर्ड, व्हाट आर द वेरिएबल एंड व्हाट इज द योर मींस लेटर एंड कैरेक्टर सी टोकन, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग का बता रही हूँ क्योंकि आपको रिवाइज भी हो जाए, ठीक है? C token, okay? I think now my writing is clear. दिव्यम ठीक है अभी? Yes, ma'am. So what is the keyword, है ना? तो there are 32 reserved keyword, और हम जो कीवर्ड का नाम है वो वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं,
ठीक है, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल होंगे, अगर हमने वो कीवर्ड का नाम दे दिया तो क्या होगा, हमारा एरर आएगा, है ना। इसलिए हम कीवर्ड का नाम, वेरिएबल का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। देन सेकेंड इज द आइडेंटिफायर्स। So what is the identifier? It is a name assigned to any variable, function, array, structure, union or ठीक है like this. So what is the variable and constant? Constant already you people know, it is an entity whose value does not change during the execution of the program, and variable is the data name used to store the data value, है ना। वेरिएबल क्या करता है, किसी भी हमारा जो भी उसका वैल्यू होगा उसको स्टोर करेगा। ओके, देयर इज अ वन टर्मिनोलॉजी यूज्ड, नेम कास्टिंग। व्हाट इज द नेम कास्टिंग? अगर हमारा कोई भी वेरिएबल है, अगर वो कैरेक्टर है और दूसरा हमारा नंबर है ना, तो जब हम इसको चेंज करते हैं, इसके लिए जब प्रोग्राम करते हैं, जब हम एक वेरिएबल को किसी सेम टाइम वेरिएबल में हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिस इज नोन एज द नेम कास्टिंग। ओके, हेलो, प्लीज रिप्लाई मी बेटे, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं, है ना। मतलब मैं जो बोल रही हूँ आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। So these are also, this is the name also these are known as a naming variable. Okay, naming variable, ठीक है। So first of all, in any programming language or C programming, first is the statement. हमारा statement क्या है, हम किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, उसकी हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा स्टेटमेंट, है ना। व्हाट इज द स्टेटमेंट? सो इन द सी ऑल स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, है ना। आपको पता होगा जितने भी स्टेटमेंट है ये हमारे सेमीकोलन से आते हैं। एंड ऑल्सो स्टेटमेंट बी ब्रोकन अक्रॉस लाइन ऑन और गेंड ऑन अ सिंगल लाइन, ठीक है। और देयर इज अ यूज्ड कॉमा टू सेपरेट मल्टीपल डिक्लेरेशन, है ना। जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेमीकोलन से और कॉमा से उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हमारा देयर इज आल्सो यूज प्रिंटफ स्कैनफ, है ना। प्रिंटफ क्या करता है, जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन है उस पे जो भी हमें लिखना है वो हम प्रिंटफ के थ्रू यूज करते हैं। और स्कैनफ क्या करता है, जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू है उसको रीड करने के लिए स्कैनफ यूज होता है ना। हेलो, यस मैम, यस, ठीक है। तो अब इसके आपने अभी जो भी प्रोग्राम किए, अभी लेटेस्ट प्रोग्राम आपने क्या किया है अभी आपके निधि मैम के साथ? हेलो, ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे मैम, ऑपरेटर्स यूज किए थे, ऑपरेटर यूज किया था। एंड आई थिंक यू आल्सो यूज योर ये इफ एंड एल्स कंडीशन हो गया था आपका, इफ एंड एल्स कंडीशन। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज योर कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना। मीन जब भी हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो देयर इज आल्सो सम कंट्रोल स्टेटमेंट एंड अरे। तो अरे हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, आपके एक इनविजिबल कैरेक्टर भी यूज होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल न्यू लाइन, है ना। ये क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। जब भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं और अगर आपने ये न्यू लाइन दिया किसी भी स्टेटमेंट के बाद, तो आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन होगा उस पे ये नहीं दिखता है ना। आप लोगों ने अगर ट्राई भी किया होगा तो ये आपको नहीं दिखता है, एम राइट, है ना। और अगर आपने ये टी लिखा, ये क्यों होता है, फॉर द हॉरिजेंटल टैब, ये भी आपको नहीं दिखेगा, है ना। अगर आपने अलर्ट बेल किया, अलर्ट बेल होता है ये, ठीक है। तो ये सब भी आपको नहीं दिखता है। तो दीज ऑल नोन एज द इनविजिबल कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो
For taking any decision, C provide two style of decision making. ठीक है, तो कोई भी हमारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना कि अगर ये होगा तो ये होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पास होना है तो मैं क्या बोलूं कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ यू डू हार्ड वर्क, ओके, देन यू विल पास. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन बेस हो गया, है ना. हेलो, है ना. तो ये कंडीशन बेस हो गया. अगर यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ये होगा एल्स यू विल बी फेल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं. ओके, और ऑल्सो दिस ऑल टाइप ऑफ योर स्ट्रक्चर इन सी कम अंडर द कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो सी हमारा है, जो हमारा सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड टू स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये हमारा क्या कर रहे हैं, हम इस पे डिसीजन अपना बना रहे हैं, या जो भी सी प्रोग्राम में हमारा डिसीजन बन रहा है, तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग. ओके, एंड ये दो टाइप से होगा. पहला क्या है हमारा, फर्स्ट इज द ब्रांचिंग एंड लूपिंग. ओके, ब्रांचिंग एंड लूपिंग. पहले तो क्या हम एक ब्रांच बना लेते हैं, दूसरा क्या हम लूप भी कर सकते हैं. सो ब्रांचिंग इज अ डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक, एंड लूपिंग इज डिसाइडिंग हाउ मेनी टाइम्स टू टेक अ सर्टेन एक्शन. समझ लो. हेलो, यस मैम. एक मिनट में इसको इरेज करती हूँ वापस से. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट देयर इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, इससे पहले सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो सी है पहला क्या करता है, लूपिंग एंड ब्रांचिंग. ठीक है, दो तरह से हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है. दिस इज नोन एज द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी. ठीक है, ओके, तो पहला क्या करेगा, जो ब्रांचिंग इज डिसाइडिंग व्हाट एक्शन टू टेक. ब्रांचिंग क्या कर रहा है, हमें कौन सा एक्शन लेना है. ठीक है, व्हाट एक्शन, ठीक है, टू टेक. और लूपिंग क्या कर रहा है, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, ये क्लियर है आई थिंक. अब क्या है आपका पहला, और ऑल्सो कंट्रोल स्टेटमेंट और मेनली 3 टाइप्स. ठीक है, पहला क्या है आपका, फर्स्ट इज द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर. ठीक है, देन केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. सो यहाँ पे मैं अब स्लाइड आगे कर रही हूँ. ठीक है, so conditional statement are used to execute a set of statement on some condition. ठीक है, and also in C program statement are executed sequentially if no condition is given around the statement. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई confusion होगा so you can ask me. हमारा conditional statement क्या कह रहा है, संजन, statement are used to execute a set of statement on some condition, and also in C program statement are executed sequentially. मतलब एक के बाद एक होगा, ऐसा नहीं कि पहला लाइन हो जाए हमारा एक्सिक्यूट फिर थर्ड लाइन पे पहुंच जाए. सी में क्या होगा, पहले लाइन को कंपाइल होगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, मतलब एक के बाद एक लाइन सारे एग्जीक्यूट होंगे. ओके, एंड इफ नो कंडीशन इज गिवन अराउंड द स्टेटमेंट, flow of statement execution can be changed using conditional statement. ठीक है, so the C process of using conditional statement also known as decision making in C. जो भी मैंने आपको बताया, decision making in C. ठीक है, जो भी हमारे कंडीशन होगा कि अगर हमारे पास कुछ भी है, यहाँ पे अगर ये हुआ तो ये हो गया, ये हो गया तो ये हो गया. ओके, हेलो. Yes ma'am. And these are also called as a control statement. Okay, decision control statement or conditional statement, both are the same.
तो आप ये याद रखना क्वेश्चन पेपर के लिए भी कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको पूछा जाता है तो यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स, है ना। वैसे तो डिस्क्राइब करने को नहीं आएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, बट टिक करने को भी आएगा, तो आप ये ध्यान में रखना। ओके, नाउ सेकेंड इज द इफ स्टेटमेंट। सो इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेड, है ना। अगर हमारा कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे फ्लो चार्ट, है ना, कैन यू सी दिस फ्लो चार्ट, स्टेटमेंट यहाँ पे कोई 1 है, देन वी गिव हियर लॉजिकल एक्सप्रेशन, ओके। एंड अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 पे जाएगा, और अगर फॉल्स है तो 3 पे गया, ओके। सो दिस फ्लो चार्ट डायग्राम नोन एज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके। जनरली इसको हम कैसे लिखते हैं, लाइक हियर इन जनरल फॉर्मूला स्टेटमेंट 1, ओके, इफ लॉजिकल एक्सप्रेस स्टेटमेंट 2 देन स्टेटमेंट 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, इफ, यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट एक्सप्रेशन, ओके, देन ओपन द ब्रैकेट एंड स्टेटमेंट ब्लॉक, जो भी हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक होगा वो आ जाएगा, एंड देन व्हाट वी विल गिव स्टेटमेंट एक्स, ठीक है। सो टेस्ट एक्सप्रेशन गिव एन इंटीजर वैल्यू 1 ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर ये हमारा, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर कुछ भी ट्रू होता है तो 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स 0 मिलेगा, ठीक है। और जब भी when the condition is true both the statement block and statement x will be executed in sequence। अगर true होगा तो ये जो भी हमारे स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस में हमारा जो भी मीन्स जो भी हमारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा इन सीक्वेंस, ठीक है। हेलो, ओके, देयर इज सम एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट। So who will answer me? Why we use wide man? Hello, आपकी क्लास में मुझे कौन आंसर करेगा इसका? हम वाइड मैन क्यों यूज करते हैं? ओके, मेन मेथड। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाइड मैन किया, देन ओपन द ब्रैकेट किया, एंड वी टेक हियर इंटीजर ए, हमने, ठीक है, कोई भी इंटीजर लिया और उसको हमने ए कर दिया, ओके। सो इसका ये कौन मुझे समझाएगा, प्रिंट ऑफ और एनी अनदर नंबर। हेलो, हेलो, यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे हमने इंटीजर n लिया, ओके। प्रिंट ऑफ एंड फॉर न्यू लाइन इंटर एनी नंबर, हमने कोई भी नंबर यहाँ पे, जैसे लाइक इफ एग्जांपल आई गिव 2 और 4, ओके। सो स्कैनफ में क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसको रीड करेगा एंड उसको कंपाइल कराएगा, एंड ए, है ना, ए की जो भी वैल्यू लेंगे, ठीक है। हेलो, हेलो, यस है ना। तो ये परसेंटेज डी किसके लिए, ए के लिए है। तो अगर यहाँ पे हमने ए 2 लिया तो यहाँ पे 2 आएगा, अगर 4 लिया 4 आएगा, अगर 3 लिया तो 3 भी आएगा, ठीक है। फिर क्या कंडीशन है, हेलो, क्या कंडीशन है इसमें, ए डिवाइडेड बाई 2, है ना, सिंपल सा है। तो क्या है, अगर 0 आ रहा है तो हमारा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। अगर हमने 2 और या 4 लिया तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और अगर 3 लिया तो क्या होगा, वो इवन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केवल एक ही यहाँ पे कंडीशन दिया है, ओनली इफ नॉट एल्स, ठीक है। हेलो,
मैम ये गेट सी एच फंक्शन क्या है? ये बेटे जो भी आपकी वैल्यू होती है वो उस प्रिंट करने के लिए होती है गेट सी एच। ये आपको नहीं बताया गया है अभी गेट सी एच एंड पुट सी एच? मैम आई डोंट नहीं नो पता। देर आर टू यहाँ पे होता है। पहला होता है पुट सी एच और दूसरा होता है गेट सी एच। ठीक है, ये जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हमारे जो भी स्क्रीन है, डॉस स्क्रीन है या जिसपे भी आपका कंपाइल कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका अभी आप लोग ऑनलाइन कंपाइल करते हो ना, जो भी Yes, आपकी ma'am. प्रोग्राम है ना, तो जब भी आप अगर वो टर्बो सीबी अपने मेरा तो यही सजेशन है कि टर्बो सीबी अपने आप लोग पीसी में इंस्टॉल कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी हमारे स्क्रीन पे जो भी आउटपुट आती है, कई बार क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो है वो नहीं आता है, बट गेट सीएस से क्या होता है आउटपुट आएगा ही आएगा। भले ही कंपाइलर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, एरर भी है, तब भी वो स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन भी करते हैं, है ना, क्लियर स्क्रीन भी यूज करते हैं यहाँ पे, कि पहले से जो भी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो सब क्लियर हो जाता है, फिर जो हम नया जो भी हम नया लिख रहे हैं वो दिखाता है केवल, है ना। तो हम ये क्लियर स्क्रीन भी यूज करते हैं, गेट सीएच भी यूज करते हैं, क्योंकि हम जो भी लिखे उसका वहां पे आंसर आए हमारे स्क्रीन पे, है ना। और दूसरा होता है, पहला होता है गेट सीएच, दूसरा होता है पुट सीएच। ठीक है, ये होता है जो भी हमारी कोडिंग है उसको, ये पहले दूसरा तो हो गया आउटपुट के लिए, और पहला हो गया आपके इनपुट के लिए, कि जो भी हमारी इनपुट है वो वहां से डेटा ले रहा है। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके ठीक है, तो इसमें अच्छा क्या था, मैंने जो बता रही थी कि यहाँ पे केवल हमने इफ ही लिया है, एल्स नहीं लिया है। हियर वी टेक ओनली द इफ, है ना। तो अगर ये जो अगर कोई भी नंबर अगर सम होगा, अगर इवन होगा, अगर ए का कोई भी नंबर अगर 2 4 6 है, ऐसा कुछ भी है, तो वो क्या प्रिंट इवन करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमने एल्स का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. And all of you also requested to practice yourself also। ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिसिंग से, केवल ये थ्योरी से नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, हेलो। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको याद भी रहेगा कि हम जो भी हमारे वेरिएबल हैं या जो भी हमारे डायरेक्टिव हैं, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसका यूज क्या हो रहा है। ओके, एंड सी इज द वेरी बेसिक फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस। जितने भी और लैंग्वेजेस हैं उसके लिए सी हमारा क्या है, बेसिक है। ठीक है, दूसरा इज द इफ एल्स। सो यूज टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि अगर जैसे हमने ए का किया था इससे पहले वाले में, कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू अगर हमारा इवन है ए की वैल्यू, तो सॉरी क्या था यहाँ पे, ये था ना। हाँ, अगर कोई भी वैल्यू हम इसकी दे रहे हैं और अगर उसकी जो भी 0 आ रही है तो इवन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक ही था कि वो इवन कर रहा है अगर 0 है। ठीक है, अगर 0 नहीं है, अगर कुछ रिमाइंडर हमारे पास है, तो उसके लिए हमने वहां पे नहीं दिया था, बट इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, सो इसको दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द टू वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसका सेंटेंस क्या होगा, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ए एल्स स्टेटमेंट बी। ओके, हेलो हेलो। Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, और ये आपको एक और भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, आपके जो भी ये सेंटेंस है जो भी आपको बताया गया है, या जो इस सेंटेंस को भी आप अच्छे से याद रखोगे कि किसमें क्या होता है, किस स्टेटमेंट में क्या होता है। ठीक है, बिकॉज ये भी कई बार सेंटेंस भी आ जाते हैं आपके पेपर में कि इसका सेंटेंस कौन सा सही है या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, फिर भी इसमें 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, है ना। चार्ट आएगा? हेलो
अच्छा, और कोई भी हम प्रॉब्लम होती है, जो भी हम सी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी, जैसे अब अगर मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है सी में कि 3 नंबर हैं, है ना, वी हैव 3 नंबर, और उसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है उसको चूज करना है। ठीक है, ग्रेटर नंबर को चूज करना है एमंग ऑफ द 3 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे जो सी प्रोग्राम लिखने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका वी डू ऑलवेज फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के बाद उसकी जो स्टेटमेंट है हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं। दिस इज नोन एज द एल्गोरिथम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल में या नहीं, आपके सिलेबस में था? आपके सिलेबस में था या नहीं था ये इन फर्स्ट मॉड्यूल? हेलो, हेलो, मैम फ्लो चार्ट बनाना क्या आएगा एग्जाम में? नहीं, फ्लो चार्ट बनाने को नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फ्लो चार्ट तो एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऑब्वियस आप फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे। बट हाँ, सेंटेंस आ सकता है। सेंटेंस ऐसे आ सकता है कि जो भी हमारे जो भी लॉजिक है या जो भी हमारे स्टेटमेंट है उसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, या इसका जो भी लॉजिक है वो क्या हो सकता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके लॉजिक बेस। बट मैं यहाँ पे वैसे अदरवाइज आपको बता रही हूँ कि जो भी हमारे सी प्रोग्राम है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट उसका देखते हैं। उस फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम बनता है, एंड देन एल्गोरिथम के बाद आपका प्रोग्राम लिखा जाता है ना। एंड देन इस प्रोग्राम में सारे हमारे आते हैं कि सी प्रोग्राम है, जैसे आपका, मैं इंग्लिश या हिंदी की बात करूं, ओके, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें इंग्लिश में यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ करना है, कॉमा कहाँ करना है, पहला लेटर आपको कैप्स में लिखना है, या इसके भी रूल हैं, है ना। तो सेम लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, सी इज अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर एंड विच हैव सम रूल। तो ये सारे रूल हैं कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और इसमें इसके डायरेक्टरी होते हैं पहले, ओके, एंड डायरेक्टरी में क्या होते हैं, 32 आपके रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जो हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, ओके। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड, क्या लिखते हैं, इंक्लूड, कौन बताएगा मुझे? हेलो, stdio.h। यस, स्टडी डॉट, ये ठीक है। और क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ पे, क्या क्या लिखते हैं, studio.h और, है ना। तो ये सारे आपके, भी लिखते हाँ, अगर ये भी लिखते, ये तो हमारा लिखना ही लिखना है, इसके मतलब ये तो हमारा कंपलसरी होता है लिखना। बट इसके अलावा ऑप्शनल भी होता है, कई बार हम इंक्लूड डॉट मैथ भी लिखते हैं, है ना। ये तब लिखते हैं जब हमारे प्रोग्राम में मैथमेटिक्स यूज हो रहा हो, जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैथ यूज हो रहे हो, है ना, मैथ के बड़े बड़े फॉर्मूले यूज होते हैं, तब हम डॉट मैथ भी लगाते हैं, ठीक है। बट दीज आर द ऑप्शनल। बस studio.h क्या होता है, ये कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट को जो भी आपके डायरेक्टरी में जो भी उसमें पहले से ही हमारे जो भी डिक्लेरेशन है उसको वहां से डायरेक्टरी को उठाता है, लाइब्रेरी को उठाता है, जो भी सी की लाइब्रेरी है ना। तो ये तो जरूरी होता है लिखना, बट बाकी ऑप्शनल भी होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, बट ये ऑप्शनल होते हैं। बट इंक्लूड डॉट एचटीओ ये कंपलसरी है, बिकॉज आईओ क्या है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, वो आपको अब ये है कि इसके कंट्रोल स्टेटमेंट है, देन इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल, यहाँ तक तो पहले वाला एग्जांपल था प्रिंट इवन नंबर। इसके बाद यहाँ पे हमने एल्स भी कर दिया कि अगर इवन नंबर नहीं हो रहा है एल्स तो प्रिंट ऑड नंबर, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, यस मैम। ठीक है, टाइम भी आपका हो गया है, सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड योर अटेंडेंस। Ma'am, I got kicked once and twice. Can you just mark my attendance manually? Okay, your Prajwal. name is not in Amazon. Ma'am, it is there in Amazon. Okay,
So what is the problem? You are joining just now? Hello. No, ma'am, I got kicked back. Someone kicked me, so I'm asking, can you mark me so the attendance thing don't bug out or something? Okay. Let's Same wait. here, ma'am. I'm same. Okay. एक मिनट, तो कोई भी अभी क्लास अभी लीव नहीं करना, ठीक है? मैं अभी अटेंडेंस फिर से डाउनलोड कर रही हूँ. ओके. दे आई कैन सी 30 स्टूडेंट है ना, केवल 30 स्टूडेंट है अभी. प्लीज रेज योर हैंड्स. कौन कौन ने अभी ज्वाइन किया, जिसको भी लग रहा है कि उसकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी? रेज योर हैंड्स मैम मेरा क्विकली. नेट चला गया था अभी. ओके पार्थ. ओके पार्थ. और तो मैम युवराज. युवराज. ओके युवराज. और विधि. और कौन है? संकृत. ओके. वंशिका. नहीं, सभी हैंड नहीं रेज करो. जिसको लग रहा है कि वो बीच में चला गया था, उसको वो केवल हैंड करो. नेहा. ठीक है. ओके. निबिर. ठीक है. ओके. ओके ठीक है. आई हैव डाउनलोडेड योर अटेंडेंस. ठीक है.